देन आई विल डू इट। इसके बाद स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना अभी तक। नहीं नहीं सर, ओके, नाउ अभी होगी। screen is being shared and all is done. I should come in the center. Okay, now fine. So yesterday we were discussing that what is the relationship between the prakriti and three gunas. We will continue with that, and I think that I had dictated 4 or 5 lines, so I really don't remember that what were those lines. Can you anyone tell me that what we were writing at that time? Anyone? Also, last line was although they are contributes. That was the last line. Aye. There was voice break. सर प्रूफ्स Although में प्रूफ में ही चलना है हम लोगों को। खत्म हो गया था सर प्रूफ। सर वी हैव रिटन समथिंग अबाउट प्रकृति एंड गुनास का जो रिलेशन था उसके बारे में हमने 3-4 लाइंस लिखी थी। लाइक जो लास्ट लाइन आपने लिखवाई थी दैट वाज ऑल्दो दे आर कॉल्ड गुनास येट दे आर नॉट ऑर्डिनरी क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर आपने खत्म किया था। Yeah, so actually I was telling you that the gunas in the Sankhya, they are, yeah, you can write like it, the gunas in Sankhya is not as same as it is in Nyaya Vaisheshik. They are not same. And what is the difference between them? Why they are not same? Because here the gunas are not attributes to, the gunas are not attributes in any sense in Sankhya philosophy. Because if they are the attributes, they will be associated with some dravya. Here we cannot say them the matter, but for our understanding we can say कि gunas will be associated always with any dravya or the matter. But in Sankhya Darshan it is not like that. So what is in Sankhya philosophy? So start writing it. They themselves possesses qualities. These gunas are themselves possess qualities like what are the qualities of the guna here? They are lightness, activity, heaviness, etc. They are extremely fine and ever-changing elements. They make up prakriti. Which is nothing apart from them. They are not the qualities which prakriti, the substance
Prakriti, the substance, possesses. On the other hand, they themselves constitute Prakriti. So gunas constitutes Prakriti. They are the factors or the constituents of or the elements of Prakriti, or the elements of the Prakriti. Now, Tisya, can you exactly tell me that why Sankhya is being contradictory to itself while they are saying that gunas are the elements or constituents of the Prakriti? What is problem with that? So Prakriti is the mother cause of every effect. Then how could it be divided in the further gunas? This could be the thing. It is the mother cause. Okay, it is the mother cause. That's Yes, okay. sir. So when we are calling it that, so there is no cause of the Prakriti, uncaused cause it is. Yes, sir. But when they are calling the Sankhya philosophers that Prakriti are made up of these three gunas, so the three gunas are being material cause of Prakriti. Yes, sir. Material. Yes, sir. So it is no more uncaused cause. So it is the Uncaused cause, self-contradictory. Okay? Yes, sir. Okay. Yes, Keep sir. writing. They are called gunas. Because they are the elements of Prakriti. Which alone is called substantive, or because they are subservient to the Purush. You can write Purush either like this or like this. Purush. Or because they are intertwined like three strands
like 3 strands to make up the rope of Prakriti, to make up of the rope of Prakriti, makeup of the Prakriti, which binds the Purush, which binds the Purush, which binds the Purush. यहां पर पुरुष प्लूरल हो जाएगा। तो ये पुरुष को बांधने के काम में आता है। ये कुछ हद तक अगर आप इसको देखिए तो जो हिंदू आध्यात्म है, जो प्रचलित हिंदू आध्यात्म हुआ, खासतौर से हठ योग में, वहां पर जो जब कुंडलिनी जागृत करने के बारे में बात की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जब ये कुंडलिनी जागृत करने के लिए बात की जाती है तो कहा जाता है कि ये कुंडलिनी आप तभी जो है जगा सकोगे अपनी, जब आपके पास इस कुंडलिनी के चारों तरफ एक साइड से ये ऐसे ईड़ा चलेगी और दूसरी साइड से आपकी पिंगला चलेगी। तो ईड़ा और पिंगला, और बीच में ये जो आपकी पड़ी हुई है ये सुषुम्ना पड़ी हुई है। और जब कुंडलिनी जागृत होकर के चलती है तो इसी सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर उठ करके जाती है। तो कुछ हद तक, और यहां पर ये जैसे जैसे जागृत होती चली जाएगी वैसे वैसे पुरुष मुक्त होता चला जाएगा या साधक मुक्त होता चला जाता है। ये ठीक वही फिलॉसफी है जो कि यहां पर, ये हालांकि एग्जैक्ट इसको जो है हम फोटोकॉपी वाले सेंस में तो नहीं बोल सकते, बट यार हम ये कह सकते हैं कि हठ योग कुछ हद तक इस जो है 3 गुणास का जो पुरुष का बंधन है उसको जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना शक्तिमान वगैरह में जो है पीठ की तरफ जो है कुंडलिनी जागने लगती है, तो वो कुछ हद तक वैसा ही है। हालांकि ऐसी कोई कुंडलिनी होती नहीं है कि जो पीठ की तरफ जग जाए, वो टीवी सीरियल में ही सही था। जरा आगे लिखिएगा। पांच चक्कर से 5 नहीं होता है, 7 होते हैं, है ना। अब कभी नेक्स्ट टाइम तुम मिलना तो जो है तुम्हें जागृत करके दिखाते हैं। सर ये होता क्या है जो भी आप बोल गए, कुछ समझ नहीं आया। देखो शक्तिमान तुमने देखा है? हाँ जरूर देखा है। शक्तिमान के पीठ में जो है कुछ कुंडलिनी सी जागृत होती रहती है, जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। ऐसे हठ योग वगैरह कभी सर्च करना। तो कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो हमारी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, और ये कुंडलिनी शक्ति जो होती है ये हमारे जो कुछ 7 चक्र माने गए हैं हमारी बॉडी में। ये दिखते नहीं है बट हमें उनको रियलाइज करना होता है, और ये योग की प्रक्रिया के जरिए, योग ध्यान के जरिए जो इनको रियलाइज किया जाता है। तो इनमें सबसे नीचे की तरफ मूलाधार होता है, फिर मूलाधार के ऊपर जो है चक्रास, यस सर, आई नो। होता है, मणिपुर होता है, मणिपूरक होता है। तो इस तरह से जो है आगे ललाट सहस्त्रार, मेरे टीचर में सर आपने बताया था। तो ये जो है 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र को जो है रियलाइज किया जाता है, लेकिन उनके बीच से जो है 3 जो है ये निकल करके चलती हैं, क्या बोलते हैं, नाड़ियां होती हैं।
अब नाड़ी को भी नाड़ी ही बोलते हैं, कुछ और इंग्लिश में नाम तो नहीं दिया गया क्योंकि अंग्रेजों के पास नाड़ी तो होती नहीं थी। तो उनके बीच से ही हमारे जो है वो कुंडलनी शक्ति होती है, जो किसी दीपक की लौ जैसी होती है, वो लाइट फ्लेम जैसी होती है, और उसके रूप में जो है वो माना जाता है कि ऊपर की तरफ चलती है। और जब वो सहस्त्रार में आपके जाकर के टच होती है तो फिर वहां से जो है एक कमल का जो है आप कहिए कि जो उसका जो खुशबू होती है वो आपके पूरे शरीर में जो है फैल जाएगी, और आप जो है फिर वो सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे जो अभी नहीं कर सकते। दीवार की दूसरी तरफ भी दे सकते हैं, पानी पर भी चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, और गोल गोल घूम भी सकते हैं उंगली उठा करके। तो यू विल बिकम पर्सन विद द सुपर पावर्स। तो जो अभी आपकी लिमिटेशंस हैं आप उसको क्रॉस कर जाते हो। तो लेकिन उसको बांध करके कौन रखता है? उसको बांध करके ईड़ा और पिंगला, ये दो बांध करके रखती हैं, और सुषुम्ना रास्ता देती है उससे ऊपर उठने की। ओके सर। तो ये कुछ ऐसा होता है। आगे लिखते हैं कि सत्व लिटरली, सॉरी क्या हो गया, लिटरली means real or existent, means real or existent, literally means real or existent, and is responsible for the manifestation of objects in consciousness, in consciousness. It is called goodness, and produces pleasure. It is called goodness produces pleasure. It is light and bright, it is light and bright, buoyant, buoyant को आप लिख सकते हैं love, and illuminating, that is प्रकाशक। luminosity of light, आगे लिखिएगा luminosity of light, power of reflection, luminosity of light, power of reflection, upward movement, pleasure, happiness,
happiness. Pleasure, happiness. Can someone tell me the difference between pleasure and happiness? Anyone? Sir, pleasure is related to the five senses, I guess, and happiness is sir, happiness मतलब फाइव सेंसेस से और हटके हो सकता है. मतलब कि प्लेजर इज सेंसुअल व्हाइल जी द सर. हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल. या फिर ऐसे नॉन सेंसुअल कह सकते हैं नॉन हैप्पीनेस. सेंसुअल कर सकते हो, तो जो नॉन सेंसुअल होगा वो स्पिरिचुअल होगा, ठीक है सर. है ना, क्योंकि 5 सेंसेस तक ही नहीं रखेंगे, वो उससे थोड़ा बियॉन्ड जाना चाहिए, क्योंकि मन भी कई बार 6th सेंस में काउंट किया गया है, इंटरनल सेंस के तौर पर, जी सर. है ना. तो ये जो है स्पिरिचुअल है, बियॉन्ड सेंसेस, जी सर. नॉन सेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं. जी सर. नहीं, नॉन सेंस थोड़ी बोलेंगे. अरे नॉन सेंस मतलब वो वाला नॉन सेंस नहीं सर, ठीक, नॉन सेंसुअल आई वांटेड नॉन टू से. सेंसुअल. ठीक है. जी सर. रश्मि, तुम समझी, 2 शब्द यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है. एक हमने इस्तेमाल किया प्लेजर और दूसरा हमने इस्तेमाल किया है हैप्पीनेस. तो प्लेजर का मतलब होता है सुख. अच्छा शिवम, एक और प्रॉब्लम है. जी ये सर. केवल 5 सेंसेस ही नहीं है. इंडियन फिलोसफी में 5 सेंसेस नहीं, 11 सेंसेस काउंट किए जाते हैं. मतलब सर मैं नंबर ऑफ सेंसेस की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सेंसेस की बात कर रहा था कि प्लेजर सेंसेस से रिलेटेड होगा और हैप्पीनेस सेंसेस से थोड़ा हटके हो सकता है, बियॉन्ड सेंस हो सकता है. है ना. और सर प्लेजर जो आपने बोला सुख सुख है. हैप्पीनेस क्या है सर फिर? आनंद. सर उल्टा नहीं ना है सर, ये नहीं, आनंद नहीं. को प्लेजर नहीं ना कहते हैं. हैं? आनंद प्लेजर नहीं ना है सर. नहीं 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 अभी तक मुझे यही पता था कि आनंद प्लेजर को कहते हैं. नहीं नहीं नहीं. सुख छोटा है, जी सर. पशुवत है. हम्म. आनंद देवत्व है. इसको ऐसे भी समझो ना, भगवान की एक उपाधि जो है सच्चिदानंद है. जी सर. सच्चिदानंद. सतचित्त आनंद है. जी सर. तो एक है सुख और दूसरा है आनंद. तो सर नंद के घर आनंद भयो टाइप. हाँ भाई, प्रगट दीन दयाला, जी सर. उसमें आता है कि आनंद का जो है तो सच्चिदानंद शब्द से जोड़ा जाता है. तो रश्मि, एक सुख है और दूसरा क्या है? आनंद है. तो सुख का मतलब क्या है कि जो हमारी दुनिया की, जो दुनियादारी वाला सुख है, हमारे अपने इंद्रियों से उत्पन्न सुख होता है. तो चाहे वह जो है ज्ञानेंद्रिय से हो, चाहे वह जो है किसी अन्य इंद्रिय से हो, तो उसको जो है हम सुख बोलते हैं. और आनंद किसको बोलते हैं? आनंद बोलते हैं कि जब हमारे आत्मा में कोई सुख हो, जैसे कि तुम्हें कभी पूजा पाठ करके बड़ा अच्छा लगा हो, तो ये आनंद का विषय है. हालांकि यहां पर ओशो बड़ा बढ़िया है. ओशो प्लेजर टू हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं. बड़ा एक अच्छी उनकी बुक है, कभी आप लोग के पास फुर्सत रहे तो पढ़िए, पढ़ना चाहिए. और वो है संभोग से समाधि तक. और उनका ये कहना है कि प्लेजर से ही हैप्पीनेस को जो है आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे. अगर अचानक से आपको हैप्पीनेस दे दी जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज है. तो शायद ओशो इकलौते रहे हैं जो प्लेजर टू हैप्पीनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं. नहीं तो या तो लोग हैप्पीनेस को अच्छा मान करके प्लेजर को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जैसे कि बुद्ध वगैरह हैं. राइट. तो ऊपर चल रहे थे हम लोग. कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस के बाद कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट, ब्लिस,
or all due to it, or all due to it. Its color is white. Its color is white. इसीलिए जब देवी देवताओं की जब लड़ाई कराई जाती है ना राक्षसों से और देवताओं में टीवी सीरियल्स में, तो देवता लोग इंद्र वगैरह को देखिए तो व्हाइट कलर में रहेंगे, और जब राक्षस लोग रहेंगे तो वह कैसे होंगे, वो ब्लैक कलर में होंगे। इसके पीछे रीजन यही है। रजस, नेक्स्ट पॉइंट इज रजस। अब रजस के बारे में क्या बोलते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी को? नो सर। रजस, which literally means foulness. Is the principle of motion, is the principle of motion. तो जो लोग चलते फिरते ज्यादा हैं वो कैसे होते हैं, रजोगुणी हैं। It produces pain, produces pain. Restless activity, आजकल मैं इसी में चल रहा हूं। सर क्या ये कह सकते हैं क्या कि मोशन की वजह से पेन प्रोड्यूस करता है रजस गुण? हाँ, चलते रहो। नहीं नहीं, ये सिर्फ मोशन जो है वो सिर्फ चलते रहना नहीं है। मोशन कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम जब मोशन को समझते हैं तो हमारा क्या मतलब है कि 2-4 किलोमीटर चले होंगे, दैट इज द मोशन। बट एग्जैक्टली मोशन यहाँ पर वो मोशन नहीं है। मन का भी चंचल होना, ये भी तो मोशन है ना। जी सर, वो मैं समझ रहा हूँ। क्या था सर, वही उस मोशन के कारण ही पेन है रजस में, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। जी सर, ठीक है, बिल्कुल, वी कैन से। ओके सर। तो ये रेस्टलेस एक्टिविटी है, फेवरिस एफर्ट है, and wild stimulation, and wild stimulation. Are its results, are its results. मैं कई बार सोचता हूँ शिवम कि अगर फिलॉसफी ना पढ़ा होता तो कितना कुछ मैं न जानता होता। जी सर। चलो हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो ये नहीं पता कि अकबर कौन से साबुन से नहाए थे, जियोग्राफी नहीं पढ़ा तो ये नहीं पता कि कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है। अगर फिलॉसफी ना पढ़ा, फिलॉसफी नहीं जाना, तो कितना मतलब खुद को ही नहीं जाना मैंने। सर ये आपका प्रेम बोल रहा है फिलॉसफी के लिए। नहीं तो एक बात, मैं दिन भर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। जी सर। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट कम पढ़ा। ये सब प्रेम तो फिलॉसफी से है ना। हाँ, तुम तो ये कह सकते कि फिलॉसफी और मेरा रिलेशन कुछ ऐसा है कि मैं ही फिलॉसफी हूँ, फिलॉसफी ही मैं हूँ। सर ये मोह है या प्रेम है? मोह नहीं है, मोह होता तो छोड़ देता। मुझे जिस चीज का मोह होता है ना, मुझे मोह होता है, खूब होता है। और जिस चीज का मोह होता है कुछ दिन के बाद मैं कसम खाकर उस चीज को छोड़ देता हूं। मैं कभी किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, लेकिन खुद को कैसे छोड़ूं? सोचो ना कितनी खूबसूरत सी बातें कही जा रही है कि रेस्टलेस एक्टिविटी, फेवरिट एफर्ट एंड वाइल्ड स्टिमुलेशंस आर इट्स रिजल्ट्स। इट इज मोबाइल। ये क्या कहते हैं? इट इज मोबाइल। सर
Rajas gun is mobile, or it makes the elements mobile? I mean, it makes the other things In mobile. itself. In itself, it is mobile, Yeah, and it you also can makes say other things mobile, right? it is cause of mobileness. सर एक मेरा क्वेश्चन है हम सत्व गुण को भी ये कहते हैं ना कि उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो मूव तो वो भी कर रहा है, तो फिर हम रजस को ही क्यों केवल मोबिलिटी का ये पत्थर का अपवर्डनेस नहीं है, ये पत्थर उछाल दिया ऊपर, तो Yes, ये सत्व नहीं है, स्टिल इट इज रजस. सर लाइक वेपर, हम एग्जांपल अगर हम वेपर का ले, वाटर वेपर का, तो उसका जो मूवमेंट होता है एज अ इन अ गैसियस फॉर्म, तो उसका जो अपवर्ड मूवमेंट होता है दैट इज टर्म्ड एज सत्व. No, 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 Right. no, 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 my child. That is rajas. देन फिर व्हाट इज सत्व देन? Sattva. बिकॉज यू सेड कि अपवर्ड मूवमेंट जो होता है दैट इज सत्व. Then when you are realizing yourself, when you are becoming more spiritual, the devatva is coming in you. That is the sattva. Upward movements means what's upward movements? Your spirituality. As there are two spirits in your body. One is the pure Sir, spirit, and second one तो- is, listen me. तो बेस अच्छा Listen. I'm describing it. There are two spirits in your body. One is the pure spirit, and second one is the animal spirit. Even when you will study Descartesian philosophy, you will study it. यस सर. Right, Shivam? वहां पर इस बात का जिक्र है ना? जी सर. तो so what pure animal spirit is, what it is doing, your physical movement, all physical movements are due to your animal spirit, and your spiritual gains, that is the sattva movement, upward movement. It is not Okay. a physical movement. सो वी कैन से कि जो मटेरियलिस्टिक चीजों का मूवमेंट है दैट इज रजस, while जो spiritualistic है that is No, it sattva. is not exactly like that, because if we will call it materialistic and spiritualistic, so materialistic, so our mind, so our man, Okay sir. the movement of our man, कि दबा के आज बास्केट चाट खाना है तिष्या, कालिका हट जो है बहुत बढ़िया जो है हांडी मटन जो है प्रोवाइड करता है. अब बाइक से भले ही कुछ और है, लेकिन मन एकदम से जो है मुंह में जो है पानी घुल करके आ गया. हाँ सर आ गया. आ गया ना? ये क्या है? हाँ सर. देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट, but still it is the rajas movement. Getting my point? Yes sir. But when you are doing meditation, you are shedding off all the thoughts and animal spirits, your weight, you are losing your weight during the meditation, then it is your upward movement. The Gandhi, अंगुलीमाल या रत्नाकर वाल्मीकि, तो रत्नाकर जब वाल्मीकि होता है तो दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट. देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट, नो डिस्टेंस, नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बट स्टिल देयर इज अ मूवमेंट. दिव्या, रत्नाकर और वाल्मीकि के बारे में कुछ पता है? हाँ सर पता है. वाल्मीकि रामायण और रत्नाकर? दिनकर
दिनकर रत्नाकर थे ना शायद तिष्या, सर। सर he was a poet like contemporary poet है I guess रत्नाकर। अरे रहने दे, मतलब पता चल गया कि तुझे नहीं पता है। तिष्या, हाँ ठीक है सर। रश्मि, नहीं सर रत्नाकर नहीं पता। सर ये हम्म, बोलो सर रत्नाकर इनका नाम था ना सर ये किसका? महिष आपने सर क्या बोला था दोबारा से बोलना। सर तुलसीदास का नाम तो नहीं था रत्नाकर। अरे चुप हो नहीं जा, पता महर्षि कि का तुम्हें नहीं पता है। वाल्मीकि और रत्नाकर। हाँ सर ये रत्नाकर जो था इनका नाम था वाल्मीकि जी का। यस एग्जैक्टली। और वाल्मीकि पहले डाकू थे, लोगों को लूट हाँ लूट करके अपना घर चलाते थे। बाद में ज्ञान प्राप्त होता है और इसके बाद ये समझ जाते हैं कि दुनिया ऐसी नहीं है, तो रत्नाकर ही बाद में वाल्मीकि बनते हैं। तो जब डाकू है रत्नाकर और बाद में ज्ञानी वाल्मीकि बन जाते हैं, एक में वो ना द्वितीयो अस्ति न भूतो न भविष्यति लिखने वाले, तो फिर कौन ये होते हैं? दैट इज द स्पिरिचुअल मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। बट अपवर्ड मूवमेंट्स इट नॉट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. So if you are covering some distance or displacement, then what is this? It is rajas. All clear? Yes sir. तिस्या कैसे होगा? Yes sir. कैसे होगा? सर रत्नाकर नहीं पता तो वाल्मीकि तो पता थे। अब ये रत्नाकर वाल्मीकि से ही पहले नाम था, ये नहीं पता था। पता होना चाहिए। ये क्लास 6-7 में पढ़ाया गया। स्टिमुलेटिंग, अगला लिखिएगा स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग को क्या लिख सकते हैं? अपस्तंभक। क्या लिख सकते हैं? अपस्तंभक मतलब खड़ा होना। स्तंभक, अपस्तंभक, खड़ा होना, स्टिमुलेट होना। Its color is red. Its color is red. तमस, literally means darkness. अंधेरा कायम रहे, सम्राट तिलविस। डार्कनेस is the principle of inertia, is the principle of inertia. So what is the inertia? रुक जाना। It produces apathy, and indifference. Apathy and indifference. Ignorance, अगला पॉइंट बनाएगा इसका। Ignorance, sloth, confusion, negativity or its results, it is heavy. Heavy means guru, and enveloping,
enveloping. वर्णक, क्या बोलेंगे इसको? वर्णक. And as such is opposed to sattva, and as opposed is to sattva. It is also opposed to rajas. It is also opposed to rajas. How it is opposed to rajas? Sir, Rajas is What? Rajas is mobile. Like it is literally it meaning arrests is in activity, motion. we can say. And here it is inertia. Yeah, definitely. It is opposed to rajas as it arrests Yes, sir. The activity. moving है इधर stop पे like रोक एकदम देने पे. एकदम good point. Arrests activity. Its color is dark. Color is dark. These three gunas which constitute prakriti, these three gunas which constitutes prakriti are never separated, separated की बजाय लिखिए नेवर सेपरेट, तो ज्यादा बेटर होगा. और नेवर सेपरेट. They conflict and yet cooperate like मियां बीवी. आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह समझ लीजिए. And yet cooperate with another and are always found intermingled. They are compared to the oil. They are compared to the oil, the wick, and the flame, of a lamp. ऐसे लिखिएगा तब पढ़ने वाले को मजा आएगा. उसके पास जो नंबर्स नहीं भी होंगे ना, वो पड़ोसी वाले टीचर से उधार मांग के आपको दे देगा, जहां पर आप लोग की आंसर शीट चेंज हो रही होगी. उसकी आत्मा जो है ना, किसी गुलाब की तरह खिल उठेगा. एग्जांपल्स दे देके. या एग्जांपल्स आप मस्ट देना ही पड़ेगा. और जब खुद सांख्य के दिए हुए आप जो है एग्जांपल्स उठाओगे, तो सोचिए ना, इसको लिखने के बाद क्या आप लोग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, कुछ आनंद आया, हैप्पीनेस हुआ, या सिलेबस पूरा हो रहा है इसका प्लेजर ही है? which though opposed a lamp, which though opposed yet cooperate to produce the light of a lamp. They are imperceptible. And are inferred
from their effects. Okay, Tisha, can you tell me that how do we infer, by any example you can make it clear to us, that how we infer anything from its effect? What Sir, how we infer any knowledge or a thing by its effect? What is the meaning of inferred? So inferred. Yeah. What do you understand with the inference? So inference means मतलब किसी चीज का conclusion. तिष्या, अब मेरे अंदर जो है तमस गुण जाग रहा है. So inference तो वही होगा reaching about something, किसी fact के conclusion तक reach करना. No, Inference. No, not exactly like that. It is not the inference. So if we are deducting anything, then that is also, we can get a conclusion either by the deduction or by the induction. Okay, a good question is, हमारा प्रश्न ये है, आप ये बोल रहे हो कि हम जो है कंक्लूजन को ही, हम अगर कंक्लूजन पाते हैं तो कंक्लूजन, मैं रश्मि को भी बताता चलूं कि कंक्लूजन जो है निष्कर्ष है, राइट? अब कंक्लूजन निष्कर्ष है या कंक्लूजन जो है वो, अब ये कैसे मिलता है? ये दो तरीके से मिल सकता है. एक तो ये मिल सकता है बाय डिडक्शन और दूसरा मिल सकता है बाय इंडक्शन. डिडक्शन को बोलते हैं निगमन, ये न्याय दर्शन में भी इसकी चर्चा मिलती है, और आगमन. इसमें क्या होता है? ये ऑल कैट्स आर डॉग्स, और डॉग्स आर bulls, then all cats are bulls. It is the deduction. We are getting a conclusion here, but here we are logically concluding something, and there is no gap between the syllogism and its conclusion. यहां पर सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते सांड हैं, इसलिए सभी बिल्लियां सांड हैं. करेक्ट है. और इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में हमने कहा कि लास्ट टाइम मैंने एक जो है शर्ट खरीदा था, तो इस बार वो शर्ट अच्छा था, इसलिए मैंने इस बार भी शर्ट खरीदा, तो वो भी अच्छा है. तो क्या ये जरूरी तो नहीं है? तो कहो, तो फिर हमने बोला कि नहीं, लास्ट टाइम जो है हमने ढेर सारे आर्गुमेंट्स हमने दिए कि लास्ट टाइम हमने जो है उसी शॉप से खरीदी थी, इस टाइम भी उसी शॉप से खरीदी, लास्ट टाइम भी इसी प्राइस में खरीदी थी, उस टाइम भी इसी प्राइस में खरीदी थी, लास्ट टाइम भी हमने, फिर इस टाइम भी इसमें ये. तो आपने 7-8 ऐसे लॉजिक दे दिए, तो फिर आपने कहा कि हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि इस बार में मेरी खरीदी हुई शर्ट अच्छी होगी. तो ये जो कई सारे जो है हमने पहले क्या दिए, हमने बेस आर्गुमेंट्स दिए और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाल लिया. तो यहां पर फिर भी एक गैप बना रहेगा. हो सकता है कि ये जरूरी नहीं कि ये जो हमारे बेस आर्गुमेंट्स हैं वो हमारे यहां पर जो है कंक्लूजन के साथ मैच करी जाए. तो वन इज द डिडक्शन एंड वन इज द इंडक्शन. तो कंक्लूजन कैसे इन्फरेंस हो गया? इसमें से कौन सा कंक्लूजन इन्फरेंस है, कौन सा निष्कर्ष आगमन है? रश्मि, जहां नहीं समझ में आया बोलना.
तिष्या, यस सर। कौन सा कंक्लूजन इसमें आपको इन्फ्रेंस लग रहा है? इंडक्शन। इंडक्शन इज इन्फ्रेंस? निकल के आना सर, मतलब दोनों जगह निकल करके आ रहा है। निष्कर्ष तो निकल के ही आएगा ना, यस सर। डंडा मार के थोड़ा ही आएगा। सर रश्मि, इन्फ्रेंस को अगर ऐसे कहें कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, तब भी सही नहीं है। दोनों जगह फैक्ट्स, दोनों जगह। ओके। रश्मि, आगमन किसे कहते हैं? देखो, इससे हम लोग एक जो है इंडक्शन करते हैं कि कल की और परसों की क्लास तुमने नहीं देखी है, राइट? अच्छा सब मैंने बुक से सर रीड किया था जहां तक कराया गया है। बेटा, अगर बुक से ही पढ़े से सब कुछ हो जाता तो हम सारे टीचर बेरोजगार ना हो जाते? यस सर। आप फिलॉसफी को बुक से पढ़ सकते हो? नेवर। फिलॉसफी मीन्स a teacher and a student. You have to sit near to your teacher. You have to have your full faith and trust in your teacher. Then you can understand the philosophy. A guru is required. Yes sir. Philosophy cannot be read. You cannot read the philosophy because philosophy is the subject of our soul. We feed philosophy to our soul. It is something like an ornament to our soul. It is not like that 2 plus 2 is equal to 4. It is not like that Akbar used luck. तुम्हें फिलॉसफी मैंने सोच करके बोला था तिष्या। कुछ लगा था कि मैं सबको फिलॉसफी के लिए नहीं बोलता हूं, मैं मना कर देता हूं। आपके ही क्लास में कितने बच्चों ने आकर के कहा कि हाँ आपने तिष्या और दिव्या को बताया, आप मुझे भी बताइए। आई टोल्ड देम नो, मैं नहीं बताऊंगा। और ये तो शिकायत सुनी होगी तुम लोगों ने बाद में। अच्छा तो तुम तो डिसअपॉइंट कर रहे हो। आपको पता है तिष्या, मैं सुबह से लेकर के शाम तक इस समय जो है 6 अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं और ऊपर से जो है लैपटॉप और तंग किए पड़ा है। बट मैं सच में बताऊं, मैं तुमको लेकर के सत्व की फीलिंग से जो है आज सीधे सीधे तमस की फीलिंग में आ गया। Who will define the inference here? रश्मि, आगमन क्या होता है? दिव्या, आगमन क्या है? What is the inference? सर लॉजिकल रीजनिंग अबाउट समथिंग, डिड्यूसिंग इट। अगर हम लॉजिकल बात से किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं देन इट इज इन्फेरेंस। Inference in itself is a proof, my child. सर Okay, and we use it when we cannot directly sense. सर आपने जो बोला था अनुमान लगाना, मतलब वो अनुमान कॉज जो आपने बोला था। अनुमान नहीं बोल रहा हूँ। यत्र यत्र धूम्रस्य तत्र तत्र वह्निम्। Yes sir, that smoke वाला एग्जांपल, that is the example of inference basically, क्योंकि हमने स्मोक को देख करके फायर का तो वो लगाया ना, अनुमान लगाया। फायर डायरेक्टली,
If it is, Yes, if it sir. will be the direct, then it will be pratyaksha praman. Yes, sir. Okay. पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अभी बहुत अच्छा ही मजा नहीं आया, आगे बढ़ते हैं. हाँ, they are imperceptible and are inferred from their effects. All things are composed of these three. All things are composed of these three. Gunas and their differences are due to the different combinations of these gunas. The nature of a thing is determined by the preponderance of a particular guna. Preponderance of a particular guna. Things are called good, bad, or indifferent. Things are called good, bad, or indifferent. Intelligent, active, or slothful. Intelligent, active, or slothful. Pure, impure, or neutral. On account of the predominance of sattva, rajas, or tamas respectively. When these gunas are held in a state of equilibrium, that state is called prakriti. Evolution of worldly objects does not take place. At this stage. These gunas are said to be ever changing. They cannot remain static. Even for a moment.
change is said to be of two kinds. Next line is change is said to be of two kinds. One is the स्वरूप परिणाम, and second one is the virup parinam. So what is the Sarup Parinam and what is the Virup Parinam? Who would love to explain it? सर जब वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है उस टाइम पर कोई मोशन नहीं होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, होमोजीनियस होता है, यानी अगर सत्व है तो सत्व अपने आप को सत्व में ही ट्रांसफॉर्म करेगा, तो दैट इज स्वरूप परिणाम. वाइल जो विरूप परिणाम होता है उसमें चेंज हैपन होता है और क्या कहते हैं यूनिवर्स का जो क्रिएशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है बेसिकली, तो यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी वजह से विरूप परिणाम होता है. मैंने इसको और भी तरीके से बताया था. ये तो आपने सांख्य की फिलॉसफी को चलो बता दिया. वैसे स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम ये कई बार आपको जो है हेट्रोजीनियस सामने आएंगे. जब एक जैसी चीज से एक ही जैसी चीज निकले तो ये होमोजीनियस है. आदमी से आदमी का बच्चा होता है होमोजीनियस है, और आदमी से जो है शैतान का बच्चा निकल जाए हेट्रोजीनियस है. स्वरूप परिणाम मतलब इफेक्ट और कॉज एक जैसे ही हों, और हेट्रोजीनियस का मतलब कि इफेक्ट और कॉज अलग अलग हों. ठीक है, इसीलिए स्वरूप एक जैसा और विरूप अलग अलग है. अब सर आपने इसमें मिल्क और कर्ड का एग्जांपल दिया था. राइट है ना. ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, आगे लिखिएगा, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन प्रलय, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन प्रलय ऑफ द वर्ड, the gunas change homogeneously. The gunas change homogeneously. That is IA. That is sattva changes into sattva. Sattva changes into sattva. Rajas into rajas. And tamas into tamas. रश्मि इंग्लिश सुनते सुनते कुछ मजा आ रहा है? नहीं. सीधा नहीं. बट सुनो, नहीं समझ में आ रहा तो भी सुनो. जितना सुनोगी उतना ही आगे प्रिपेयर होगी. दिस चेंज डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ, दिस चेंज डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द गुणास. And unless the equilibrium is disturbed, and unless the equilibrium is disturbed, and one predominates over the other two, evolution cannot take place. Evolution cannot take place. ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो होमोसेक्सुअल मिलकर के किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते. बच्चे को जन्म देने के लिए हेट्रोसेक्सुअल होना पड़ेगा. Evolution starts where there is heterogeneous change. Evolution starts where there is heterogeneous change in the gunas, and one predominates over the other two, and one predominates over the other two, and bring about
terrific commotion in the bosom of Prakriti. The nature of three gunas, ये अगला पॉइंट बनाइएगा. The nature of three gunas. सर एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ. सर स्वरूप परिणाम में बुक में लिखा हुआ है कि बिफोर द क्रिएशन द गुनास एग्जिस्ट एज अ होमोजीनियस मास in which there is no motion. सर मास इन द सेंस, मास शब्द लिखा है तो गलत लिखा है. कौन सी बुक है? यही है सर अपना दत्ता चटर्जी ने. मास शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते. गलत है ना सर? हाँ, मास शब्द तो गलत है. तो वही मेरे दिमाग में मास कैसे कह दिया इन्होंने, हाँ, जबकि ऐसा कुछ पता ही नहीं कि सर मास है कि क्या है. नहीं, गुण मास है ही नहीं. जी सर, ठीक है सर. अगर मास हो जाएंगे तो ये इम्परसेप्टिबल कैसे रह जाएंगे? फिर इनके इन्फरेंस की जरूरत क्या रह जाएगी? जी सर. एक इस कविता है, मतलब एक दोहा है हिंदी की, बड़ी बढ़िया सी है. वो इसको बड़ा बढ़िया कहते हैं त्रिगुणों के बारे में. और वो कविता है अमी हलाहल, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार. ये सोचिए कि किसी ने अपनी नायिका के लिए कहा होगा, है ना. हम इसको सांख्य के लिए बोलेंगे. अगर इसको इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश, हाउ कैन यू राइट इट? यू कैन राइट इट अमी हलाहल, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत, जियत मरत, झुकी झुकी परत, दिव्या सोचेंगे कि आशीष सर जो है पॉलिटी में तो जो है शेरो शायरी पढ़ाए ही पढ़ाए, फिलॉसफी में भी पढ़ाएंगे. So philosophy, तो Indian philosophy is basically about, sometimes it is about shloks and dohas. So यहाँ चलता है. यहाँ चलता है, मतलब पॉलिटी में नहीं चलना चाहिए था. और नहीं, पॉलिटी में भी somewhere down the lane अगर थोड़ा सा माहौल लाइट करना तो चलता था. जे ही चितवत, जे ही चितवत एक बार, है ना. यहां पर द पोएट वो कहने की कोशिश करता है कि द बिलव्ड और द आईज ऑफ द बिलव्ड, उनकी आंखें कैसी हैं? उनकी आंखें
वाइट है, रेड है और डार्क है। ये वाइट, रेड एंड डार्क हैं एंड आर फुल ऑफ नेक्टर, इंटॉक्सिकेशन एंड पॉइजन। तीनों चीज है एक साथ, नेक्टर, इंटॉक्सिकेशन एंड पॉइजन, with the result that once they pierce the heart of a lover, he experiences the joy of life, the agony of restlessness, and the inertia of death. The recollection of the beloved gives him joy and makes life worth living. Separation causes acute pain and makes him restless. Intensity of love makes him forget everything and become inactive, inconscious, and almost dead. Sattva is white and is like nectar and gives joy. Rajas is red and is like intoxication and gives pain. Tamas is dark and is like poison and produces unconsciousness. Vibhochu Prakriti, says Ishwar Krishna. Vibhochu Prakriti. The red, white, dark, the unborn mother, and nurse and receptacle of all generation. Such is the conception of Prakriti in Sankhya. Is that clear to everyone? Yes. Yes, sir. तो प्रकृति और त्रिगुण के बीच का संबंध, द रिलेशन बिटवीन द प्रकृति एंड त्रिगुण हैज बीन क्लियर. टुमारो वी विल डिस्कस द पुरुष. आज मैं इस क्लास को यहीं पर रोक रहा हूं. रश्मि से माफी मांगता हूं कि आज मैंने हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मेरी एक और क्लास का टाइम हो जाता है. वो क्लास शुरू हो जाती है 7:30 से, तो आई एम गेटिंग मैसेज फ्रॉम देम. Tomorrow I will be free. There will be no class. So tomorrow I will start with the Hindi. I will complete the Prakriti and Triguna, and then I will start the Purusha and finish it. Okay? So tomorrow we will take more time. But Rashmi, मुझे ये लगता है बेटा कि जब तुम जितना ज्यादा सुनोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है. ठीक है? तो मुझे लगता है कि प्रकृति और त्रिगुण के बीच का जो रिलेशन है वो आप सभी लोगों को जो है अच्छा लगा होगा, और जो एक दार्शनिक का अंदाज होना चाहिए वो धीरे धीरे अब आप लोग पकड़ रहे होंगे. राइट? आर यू एंजॉयिंग द फिलॉसफी? यस सर. या अभी भी वही बना हुआ है, क्या बोलते हैं कि सिलेबस खत्म हो जाए? तिष्या? नहीं सर. मजा आ रही है फिलॉसफी में? यस सर. या पछतावा हो रहा है कि हिस्ट्री वगैरह ले लेना चाहिए था, झूठे में आशीष सर के चक्कर में पढ़ के ले लिया? नहीं सर. ये इसके लिए भी यस सर बोली, मतलब क्या है? मतलब ऐसा नहीं है, लग रहा है कि आपके कहने पे ले लिया, मतलब हिस्ट्री ले लेना चाहिए था. So you are enjoying the philosophy. Okay, so that's all for today. We will meet tomorrow again at 6:30. I think that you English medium बच्चा पार्टी प्रकृति एंड त्रिगुण के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिखिए एंड शिवम क्रॉस चेक इट. शिवम, आर यू सेटिस्फाइड? यस सर, बिल्कुल. तुमने कहा था कि थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस करना है. जी सर, ठीक है. हो गया पर्याप्त? हाँ सर, काफी है सर, मोर देन एनफ है ना. तो अब इसको अपने लैंग्वेज में ढाल लेना. हाँ सर, हो जाएगा. चलो, ओके, बाय बाय. बाय सर. बाय सर.